ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء۔ محترم جناب سلیم صاحب بڑے ہمارے گہرے دوستوں میں سے ہیں اور ہم ان کے ہم سبق ہیں۔ جماعت کے ذمہ داران اور عزیز بہنوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق و اختیارات۔ یقینی بات، غور سے سنیے گا باتوں کو، یقینی بات ہے کہ 40 سے 45 منٹ میں عورتوں کو اسلام نے جو حقوق اور اختیارات دیے ہیں وہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کسوٹی دے دی جائے، اس کسوٹی پر ہماری بہنیں اپنے اختیارات کو اور اپنے حقوق کو جانیں۔ وہ جو کسوٹی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جب دنیا کوئی قانون بناتی ہے تو اس قانون میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو قانون بنایا جائے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور اگر کہیں کمزوری ہوتی ہے تو اس کمزوری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب بھارت کا سنویدھان بنا، غور سے سنیے گا، جب بھارت کا قانون آئین بنا تو اس بھارت میں جو نچلی ذاتیں تھیں ان کے بہت مسائل تھے، جن کو ہم SC/ST کہتے ہیں، ہریجن کہتے ہیں، شیڈول کاسٹ کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کی ضرورت کے مطابق کہ ان کو معاشرے میں مساوات ملے، لہذا ان کے لیے جو ہے وہ ریزرویشن کا قانون بنایا گیا۔ ریزرویشن کا قانون صرف ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو SC/ST تھے، شیڈول کاسٹ تھے، بقیہ لوگوں کو نہیں بنایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ قانون جس کو آپ مساوات کا نام دیتے ہیں، اصل قانون ہوتا ہے عدل، اصل مساوات قانون نہیں ہوتا ہے۔ اگر اصل مساوات قانون ہوتا تو پھر سب کو آرکشن اور سب کو ریزرویشن ملنا چاہیے، تب مساوات ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قانون بنانے میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عدل کو سامنے رکھا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، قانون میں اس بات کو دھیان رکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں مساوات دے دی جائے گی تو حالات خراب ہو جائیں گے، لہذا وہاں پر مساوات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں SC/ST شیڈول کاسٹ یا مسلمانوں کی نیچی ذاتوں کے لیے بھی انہوں نے آرکشن ریزرویشن رکھا ہے، لیکن فوج میں ریزرویشن نہیں رکھا گیا ہے۔ فوج کی جب بھرتی ہوتی ہے تو اس میں یہ قانون نہیں ہے کہ SC/ST والوں کو اس کے لیے کوئی آرکشن ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے، نہیں جا رہا، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اگر فوج میں آرکشن رکھ دیا جائے گا تو پتہ چلا کہ بزدل ہو سکتا ہے اس میں پہنچ جائے اور فوج کے حالات خراب ہو جائے، لہٰذا فوج میں بھارت میں کوئی آرکشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہندوستان کا سب سے اہم امتحان ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ کمشنر، کلیکٹر کی پوسٹیں ہوتی ہیں، جس کو IAS یا PCS کہتے ہیں، IAS اور PCS میں کوئی آرکشن کا سسٹم نہیں ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر آرکشن کی بنیاد رکھ دی جائے گی، صلاحیت کی بنیاد ہٹا دی جائے گی تو نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ خراب برآمد ہو جائے گا۔ یہ تو بطور تمہید بات آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو چلاتے ہیں لوگ عورتوں میں مساوات کبھی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔
इस्लाम ने जिन बुनियाद पर औरतों को हुकूक अख्तियार दिए हैं उसमें 4 बेसिक पॉलिसी हैं। वो आपको बतौर कसौटी बयान करना चाह रहा हूं कि उस कसौटी की बुनियाद पर आप इसका अंदाजा करेंगी कि इस्लाम ने हमारे साथ ज्यादती की है या इस्लाम ने हमारे साथ अदल का मामला किया है। सबसे पहली जो बुनियादी चीज रखी है इस्लाम ने, वो जरूरत के तहत कानून और अख्तियारात और हुकूक दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर अगर औरत के ऊपर इकोनॉमिकली बोझ नहीं डाला गया, मतलब माशी लिहाज से उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि आप अपने शौहर को खिलाएं, अपने बच्चों को कमा के खिलाएं, ये जिम्मेदारी औरत पर नहीं डाली गई तो कानून ये बनाया गया कि विरासत में हिस्सा आपका आधा मिलेगा, क्योंकि आपको जो पैसे की जरूरत है वो बनिस्बत मर्द के कम जरूरत है, लिहाजा उसने आधा हिस्सा रख दिया। या ये मालूम नहीं, ये मसला आपको मालूम है या नहीं, कि अगर किसी एक्सीडेंट हो जाए और किसी एक्सीडेंट में इस्लामी हुकूमत हो और एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी शक्ल में अगर औरत एक्सीडेंट में मर जाएगी तो बनिस्बत मर्द के जो है वो आधा ब्लड मनी दिया जाएगा। यदि आधे की बात आती है तो यूरोप हमारी औरतों को बहकाता है कि देखो तुम्हारे साथ इस्लाम ने मसावात तय किया, अगर मर्द मर जाएगा तो पूरा ब्लड मनी दिया जाएगा। अगर 1 लाख दिरहम बनता है मिसाल के तौर पर, औरत मर जाएगी तो 50,000 दिया जाएगा। अब वो जब औरत को ये बात कहता है तो फौरन औरत को क्लिक करती है कि इस्लाम ने हमारे साथ जो है वो ज्यादती की है। मैं आपको बता रहा ये कहता हूं कि आपकी जरूरत के मुताबिक माशी मसाइल में आपका हक और आपको अख्तियार दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर विरासत वाले मसले को ले लेते हैं। विरासत में औरत को आधा हिस्सा दिया गया है। वजह क्या है आधा हिस्सा देने की? वजह ये है सबसे पहली कि आपके ऊपर न शौहर का बोझ डाला गया है कम खिलाने का और न बच्चों का बोझ डाला गया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी मिसाल के तौर पर क्या कंप्लेंट आ रहा है क्या वहां से? ये आ रही आवाज चली गई? अरे अच्छा, तो औरत को जो आधा हिस्सा दिया गया विरासत में, तो एक वजह तो ये है कि जरूरत ही नहीं है। दूसरी वजह ये है, मिसाल के तौर पर अब्बा का इंतकाल हुआ है, हमारी बहन की शादी नहीं हुई है, हमको 2 रुपए मिले, औरत को 1 रुपए मिला मेरी बहन को। अब उस बहन की शादी की जिम्मेदारी अभी भी मेरे ही ऊपर है। अगर वो तालीम हासिल कर रही है तो तालीम की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, लिहाजा हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है। और अगर शादी हो गई है और उसके बाद उसको आधा दिया गया है, तो जब वो मैके अपनी अम्मी से मिलने आएगी तो भैया के घर आएगी और टिफिन लेकर नहीं आएगी। माँ उससे मिलने आएगी, महीना 2 महीना जो भी मैके में रहेगी, उसका भी सारा खर्चा किसको बर्दाश्त करना है? भाई को बर्दाश्त करना है। जब भाई को बर्दाश्त करना है तो भाई को पैसे की जरूरत है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट ये है कि जब इंतकाल हो जाता है तो माँ बेटे के साथ रहेगी, बेटी के साथ रुखसत होकर के नहीं जाएगी। बेटे को ज्यादा जरूरत है क्योंकि माँ का भी खर्चा किसको बर्दाश्त करना है? बेटे को बर्दाश्त करना है। तो सबसे पहली जो इस्लाम ने बुनियाद रखी है हुकूक और अख्तियारात की, वो ये देखा है कि किसकी जरूरत कितनी है। इसी का नाम अदल है कि इंसाफ के साथ कानून बनाए जाए। जैसे मैंने भारत के संविधान की मिसाल दे करके आपको बताया कि उनको आरक्षण दिया गया क्योंकि जरूरत थी, और जहां पे नुकसान हो रहा था वहां पर मसावत को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। वहां तक सबको एक साथ कर दिया गया मामला। ऐसा नहीं होगा कि ISPCS में भी आरक्षण रख करके वो अपने देश का नुकसान पहुंचाने और गैर सलाहियत वाले वहां आकर के पहुंच जाएं। तो ताकि पता चला कि जो पहली बुनियाद है वो बुनियाद जरूरत है। अब इस पर जितनी भी आप मिसालें या जितने भी कानून को चाहें इस पर इंतबाह करते जा सकते हैं। दूसरी चीज जो इस्लाम ने ख्याल रखा है वो जिस्मानी साख्त, औरत की जिस्मानी साख्त और उसकी जिस्मानी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए कानून बनाया गया है। कहते सभी है मसावत का नारा। आपको मालूम है कि रेलवे में बहुत से डिपार्टमेंट, एक मिसाल दे रहा हूँ,
रेलवे में औरतें भी टीटी हैं गेट पे, लेकिन उन औरतों की कभी भी ड्यूटी रात में नहीं लगाई जाती कि आप ट्रेन में रात में चलेंगी। हालांकि मुसावत का क्या है, मुसावत तो ये है कि भाई जैसे मर्द रात में ड्यूटी जा रहा है औरत भी जा रही है। तो पता चला कि आपने मुसावत को कहीं भी, मुसावत जिस माने में आप ले रहे उस मुसावत को निभाया नहीं जा सकता। इस्लाम ने क्या किया है वही काम किया है तो लोग चिल्लाते हैं। अब जिस्मानी कमजोरी की बुनियाद पर सिक्योरिटी का मसला है, लिहाजा औरत की सिक्योरिटी को अल्लाह ताला ने शौहर के जिम्मे रखा, बाप के जिम्मे रखा, बेटे के जिम्मे रखा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी इज्जत की और उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें। तो उनकी जो कमजोरी है उसकी बुनियाद पर अब आप बोले कि मुझे क्यों नहीं हक दिया गया कि मैं अपने शौहर की सिक्योरिटी करूं। ये मसावत नहीं है, ये अदल है। आपकी जिस्मानी ताकत और कमजोरी का तकादा है जिसकी बुनियाद पर। अब इसी तरीके से कमजोरी में एक कमजोरी है कि औरत जल्द जो है वो गुस्से में आ जाती है। आप कहेंगे मैं नहीं आती हूं, आप नहीं आती होंगी, लेकिन एक फितरत की बात आपको बता रहा हूं। यूरोप ने क्या किया, तलाक के मामले में दोनों को हक दे दिया कि औरत भी तलाक दे सकती है और मर्द भी तलाक दे सकता है। नतीजा क्या निकला, 49% तलाक हो रही है। कहाँ, यानी एवरी सेकेंड लेडी मुतल्लका है, हर दूसरी औरत इस वक्त यूरोप में मुतल्लका है। क्यों? उन्होंने ये समझा कि मुसावात का मतलब ये है कि इनकी कमजोरी को सामने रखो या न रखो, इनको राइट दे दो। उन्होंने राइट दे दिया, राइट देने के बाद 49% तलाक होने लगी। मैं अपनी बहनों से ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि जब तलाक होती है तो मर्द ज्यादा झेलता है या औरत ज्यादा झेलती है? मैं जब पढ़ाता था दुबई में तो इत्तेफाक से जो हमारी प्रिंसिपल थी वो मुतल्लका थी, तो मैंने 11वीं के बच्चों को ये सवाल दे दिया कि अल्लाह ताला ने औरत को तलाक का हक न दे करके बहुत बड़ी रहमत की है। तो वो प्रिंसिपल चूंकि क्रिश्चियन थी तो उन्होंने वो चर्चा देखती थी कि क्या सवाल, तो उन्होंने बुलाया मुझे, कहा ये आपने जो सवाल पूछा है कि औरतों को तलाक का हक न देकर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है, हम तो ये समझ रहे हैं कि औरत इस्लाम में चूंकि बी ग्रेड है लिहाजा उनको तलाक का हक नहीं दिया गया। तो आपने ये सवाल कैसे कर दिया सिराज साहब? तो मैंने कहा कि बच्चे लिखेंगे, मैंने पढ़ाया है उनको। तो उन्होंने कहा बच्चे तो बाद में लिखेंगे, पहले मुझे समझा दीजिए आप। तो हमने कहा अगर आप समझना चाहती तो आपसे बात कर लेते हैं। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए आप मुतल्लका हैं? कहाँ? हमने कहा जब तलाक होता है तो शौहर ज्यादा झेलता है या औरत ज्यादा झेलती है? अब हमने कहा देखिए इस वक्त आप प्रिंसिपल नहीं है, मैं टीचर नहीं, आप ये बताइए जब तलाक होती तो झेलता कौन है? थोड़ी देर वो खामोश है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बात तो सही है कि औरतें ज्यादा झेलती हैं। हमने कहा कि औरत भी अगर तलाक देने लगेगी, मर्द भी तलाक देने लगेगा, तो यूरोप का आंकड़ा ये है कि 45% औरत तलाक दे रही है और 4% मर्द दे रहे हैं। तो जब तलाक का रेशो बढ़ेगा तो अल्लाह की बंदियां झेलेंगी ना। अल्लाह चाहता है मेरी बंदियां ना झेलें। तो तुम्हारी जो कमजोरी थी उस कमजोरी की बुनियाद पर कानून ये बना दिया गया कि तलाक का हक औरत को जो नहीं दिया गया है उसकी बुनियादी वजह है कि अल्लाह की बंदियां, अल्लाह चाहता है मेरी बंदियां कम से कम झेलें। अगर आपके हाथ में ये अख्तियार दे दिया जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा कि 49% तलाक होने लगेगी। तो दूसरी जो बुनियादी वजह है अल्लाह के कानून और अल्लाह के अख्तियारात देने की, वो है कि जिस्मानी ताकत और कमजोरी की बुनियाद पर अल्लाह ने कानून बनाया है। मिसाल के तौर पर कि तलाक के ही मामले में, अगर तलाक का मामला, अब लोग औरतें ये कहती हैं जब मैं कभी बात करता हूँ और जहाँ पे एकदम जो है वो डिस्कशन होता है, औरतें कहती हैं कि मौलाना साहब चलो ठीक है मर्दों को हक न देता हम ही को दे देता, तो क्या प्रॉब्लम थी? हमने कहा 2 प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपको हक दे देता तो 45% तलाक होता। नंबर 1, अगर आपको हक देता तो जैसे आज आप सवाल कर रहे थे फिर हम सवाल करते कि आपको हक क्यों दिया गया। एक एतराज तो बाकी ही रहना है ना, एक एतराज तो बाकी रहना है। और लॉजिक में जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि अगर एक सवाल के जवाब में हम जवाब दे दें लेकिन फिर सवाल उठ जाए तो इसका मतलब पहला सवाल गलत है।
نہیں سمجھے میری بات. ارسطو سے پوچھا گیا کہ انسان کی شکل ایسی کیوں ہے. کیا پوچھا کہ انسان کی شکل ایسی کیوں ہے؟ تو ارسطو نے کہا کہ اچھا بھائی آپ بتائیے کیسی ہونی چاہیے. تو اس نے پیپر لے کر کے ایک ڈیزائن بنایا کہ انسان اگر ایسا ہوتا تو بہت اچھا تھا. تو ارسطو نے کہا کہ تب میں سوال کرتا کہ ایسا کیوں ہے. تب میں سوال کرتا کہ ایسے ڈیزائن کیوں ہے. تو ایک سوال تو باقی رہ گیا. تو پتا چلا جو بھی اللہ کرتا وہ سوال اگر تم کو حق دیتا تو ہم سوال کرتے, ہم کو حق دیا تو آپ سوال کر رہی ہیں. اب ہم ہی کو کیوں دے دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کو نہ دیتا تو تم کو دیتا تو 45% طلاق ہوتی. ہم کو دیا تو 4 سے 5% طلاق ہو رہی ہے. تو اللہ اپنے بندوں کو کیوں ایسا قانون بنائے گا کہ جس میں اس کے بندے جھیلیں؟ پیرنٹس جس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں جھیلے, ہمیشہ اللہ اپنی محبت کو والدین کی محبت سے موازنہ کرتا ہے. کیوں موازنہ کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بات سمجھانا بہت آسان ہوتی ہے. والدین کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جھیلے, ایسے اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشان ہوں, لہٰذا اس نے یہ قانون اس وجہ سے بنایا ہے. دیکھیے کمزوری ہے عورت کے اندر, عورت مظلوم ہے, آج سے نہیں زمانے سے مظلوم ہے. اب مظلوم کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریونج کے طور پر, بدلے کے طور پر خوب اختیار دے دیے جائیں. ایسا ہو جاتا ہے. جیسے ابھی دلی میں کچھ دن پہلے 2 سال پہلے یہ بات ہوئی, کتاب انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر کوئی عورت کمپلین کر دے گی کہ ہمارے یہ صاحب ہم کو گھور رہے تھے, ہماری گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے, تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے ہزاروں عورتوں نے مردوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ صاحب میں کمپلین کرنے جا رہی ہوں کہ آپ میری گاڑی کے پیچھے تھے. کیوں؟ کیونکہ بدلے کی بھاونا میں قانون جب بنایا جائے گا تو یہ نتیجہ نکل آئے گا. اب وہ کمزور تھی, کمزور میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی کمزوری اپنی جگہ رہے گی اور قانون بنا دیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ترغیب کے طور پہ کہہ دیا کہ دیکھو اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور ان کی پرورش کرے تو اس کو جنت ہے. یہ کیا ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا وہ ظلم اس انداز میں ختم ہو سکتا ہے اگر اس کے بدلے میں قانون یہ بنا دیا جاتا کہ لڑکے کے اوپر رکھ دیا جاتا تو بھائی بہن کے اوپر اس سے زیادہ ظلم شروع کر دیتا ہے, انتقام ظلم شروع ہو جاتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ کرنے کے بجائے ترغیباً یہ بات کی. تو قانون کی جو تیسری بنیادی وجہ ہوتی ہے, ترغیب کی بنیاد پر قانون بنایا جاتا ہے. باپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ایسی پرورش کی کہ آپ نے ڈسٹنگوش نہیں کیا, امتیاز نہیں کیا لڑکے اور لڑکی کی پرورش میں, تو ہم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کے مانند ہوں گے. یہ ترغیب کیوں دلائی جا رہی ہے؟ قانون نہیں بنایا جا رہا ہے, ترغیب دلائی جا رہی ہے. قانون بنائیں گے فوراً بدلے کی شکل میں ہوگا اور بگڑ جائے گا معاملہ. زیادہ ترغیب دلائی گئی. باپ کو بھی ترغیب دلائی. شوہر کو کیا کہا جا رہا ہے؟ مولانا سراج صاحب بہت سفر کرتے ہیں, ہم جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت اچھے رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی دیر ہم کو آپ کو مینٹین کرنا رہتا ہے, ہم اپنے کیریکٹر کو مینٹین, مسکرا کے ملتے ہیں, مسکرا کے باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو آپ مولانا صاحب اچھے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی بیوی اور جس کے گھر والے اس کو اچھا کہیں. میں نے اس کے پہلے بھی غالباً آپ سے کہا یا کسی سے یہ بات کہی ہے, دوبارہ پھر بتاتا ہوں. یہ جو ہمارے گھر میں لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں, ہماری لڑکی ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں, آپ کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں ایک اچھا باپ ہوں, اور امی کو یہ کیسے معلوم ہو کہ میں ایک اچھی امی ہوں؟ وہ جو گھر میں لڑکے ہوتے ہیں جب وہ 13-14 سال کو کراس کرتے ہیں تو ساری چیزیں جو گھر میں ہیں امی ابو جو کرتے رہتے سب ریکارڈ کرتے رہتے, بولتے کچھ نہیں, کیونکہ لڑکے ہیں آپ کے. لیکن ان کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ان سب تو لڑکا گھر میں آپ کا ہے. اگر آپ اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں تو لڑکا جب آپ اس کی شادی وادی کی بات کرتے ہیں تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی کوئی لڑکی دے دے ہم کو بھی, جیسے ہماری امی کو آپ نے ہمارے ابو کو دیا. اس کے مطلب آپ بہترین ماں ہیں گھر میں. اس لڑکے کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. وہ جب اچھا کہے, کیوں حضور نے کیا فرمایا, خیرکم لأہلہ,
तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके घर वाले उसको बेहतर कहें। इसी तरह लड़की घर में ये कहे कि अल्लाह ताला मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से करा दीजिए, जैसे मेरी अम्मी की शादी आपने मेरे अब्बू से करा दी, ऐसा ही मुझे भी कोई आदमी मिल जाए, इसका मतलब आप बेहतरीन बाप है। और अगर ये दोनों कहीं अंदर अंदर इनकी कैफियत ये है कि अल्लाह खुदा के वास्ते हमारी हिफाजत फरमाइएगा, हमारे अब्बू की तरीके से अम्मी को जैसे हमारे अब्बू मिल गए, अल्लाह हमको ऐसा शौहर नहीं मिलना, इसका मतलब आप बदतरीन बाप हैं और वो बदतरीन माँ है। ये घर के लोग फैसला करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई कि बाहर वाले आपके बारे में अच्छा कहें, वो अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल है जब घर वाले अच्छा कहें। तो खैर, तो बाप को उधर कह दिया कि अगर आप इनकी बच्चियों की तरबियत करेंगे तो ये कह दिया गया खैरुकुम लिहालिही कह करके। तो पता ये चला कि जो कमजोरियां होती हैं, जो जिस्मानी साख्त होती है, उस बुनियाद पर रब्बे जुल जलाल क्या करता है, वो प्रोग्राम बना करके वो अख्तियार देता है, वो हुकूक देता है। औरत के ऊपर जिहाद फर्ज नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया फर्ज? आप बोले भाई औरतें भी मिलिट्री में जा रही हैं, अगर जब आप उनकी अंदर की कहानी सुनेंगी तो आप शुक्र अदा करेंगी कि हमारे मालिक ने हमारे ऊपर ये चीज फर्ज नहीं रखी है। वो कोई बोलता नहीं है, क्योंकि जब एक आदमी मसावात के चक्कर में होता है तो जब गलती हो जाती है ना, तो उस गलती को लाता नहीं सामने। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, ये औरतें जो नमाज पढ़ने मस्जिद जाती हैं, आप मस्जिद जाने का कोई फायदा नहीं। जब हुजूर ने ये बता दिया कि तुम्हारे घर की नमाज मस्जिद से अफजल है तो घर में पढ़ो। अब वो इसी बहाने आउटिंग भी तो होती है औरतों के लिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला बहुत समझाए, लेकिन मानी नहीं वो। अब हजरत उमर ये भी नहीं कर सकते हैं क्या कि साहब जबरदस्ती कह दें कि शौहर के एहतिसाब को नहीं जाना है। क्यों? हुजूर ने फरमाया है कि शौहर को ये अख्तियार नहीं है कि वो औरत को मस्जिद जाने से रोक दे। देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे मामले को किया। एक तरफ बता दिया कि तुम्हारी घर की नमाज मेरी मस्जिद से अफजल। अब अच्छी औरतों की पहचान ये है कि जब उनको देसी घी घर में मिल रहा है तो डालडा खाने मस्जिद क्यों जा रही हो। दूसरी तरफ औरत को कह दिया कि चूंकि तुम इंसान हो लिहाजा तुम्हारी अपनी आजादी है, तुम अगर जाना चाहो तो जा सकती हो। दोनों को बैलेंस किया। अब हजरत उमर मना नहीं कर सकते हैं और कह रहे हैं कि देसी घी छोड़कर ये डालडा लेने वहां जा रही है। एक दिन फिर उन्होंने क्या किया कि फजर का वक्त था, जाकर कोने में खड़े हो गए, ऐसी जगह पे खड़े हुए कि दीवार टर्न होती थी वहां, और वही रास्ता था उनकी बेगम के गुजरने का। वो जब कोने में पहुंची ना तो इन्होंने उनको पकड़ के दबा दिया दोनों हाथों से। अब जब दबा दिया तो उसके बाद छोड़ दिया। अब ये भगी घर, हजरत उमर चले गए नमाज पढ़ने, अंधेरा था, पकड़ने गए। अब दूसरे दिन हजरत उमर कहते क्या बेगम जाते नहीं क्या नमाज पढ़ने? अब ये कैसे बोले कि आप जो कह रहे थे वो बात सच्ची, ऐसे हादसात पेश आ सकते? वो तो बता नहीं सकती ना, वो बता नहीं सकती। अब लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसे ही जिन औरतों को आप समझ रही कि मसावात के चक्कर में बहुत एडवांस बन गई हैं, अगर वो अपने अंदर की जिंदगी आपको बना देंगी तो आप अपने मालिक का शुक्र अदा करेंगे। वो अंदर की बात जो है वो क्या हो रही है, वो हमको ना बता करके हमको उल्टी बातें बता रही है। लिहाजा औरत की बुनियाद तीसरी चीज, बुनियादी दूसरी चीज, जिस्मानी साख्त और कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए रब्बे जुल जलाल ने क्या बनाया है, कानून बनाया है। तीसरी चीज फितरत। गौर से सुनिएगा, ये मैं पहली मरतबा तकरीर कर रहा हूं, उसके पहले मैंने इस टॉपिक पे तकरीर इस अंदाज में होता क्या है, उम्मन अख्तियारात बताए जाते रहते हैं। मैंने सोचा आज कसौटी बयान करते हैं। तीसरी चीज, औरत की जो फितरत है, मिसाल के तौर पर औरत की फितरत है कि मेरा शौहर मेरा रहे। कोई औरत नहीं चाहती है कि मेरा शौहर जब बाजार जाए तो फंस कर वापस आ जाए, किसी की तमन्ना नहीं है। हर औरत की फितरत क्या है कि भैया मेरा शौहर मेरा रहे। अच्छा, अब देखिए कानून बनाया जा रहा है तुम्हारा शौहर तुम्हारा रहे। औरत से कहा जा रहा है कि पर्दा करो। क्यों? अगर बाजार में बेपर्दा औरतें होंगी तो तुम्हारा शौहर फंस जाएगा। तुम्हारे शौहर की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म दिया गया है और कोई वजह नहीं पर्दे के हुक्म देने की। आपने दूसरे अंदाज में बात कर दी, औरतों को समझा दिया गया है कि आप भी गिरेट है, आपको पर्दे के, मर्द लोग पर्दा नहीं करते। ये जो चक्कर है मर्द औरत के फितरत में, मेरा शौहर मेरा रहे,
मेरा शौहर मेरा है, कैसे तुम्हारे शौहर की हिफाजत की जाए? तुम्हारे शौहर की हिफाजत के लिए क्या जा रहा है? वहां बेपर्दा औरतें न घूमती रहें कि तुम्हारे शौहर को फंसा लेंगी, इस वजह से कानून पर्दे का बनाया जा रहा है। फितरत को मद्देनजर रखते हुए रब्बे जुल जलाल ने कानून बनाया है। समझे अपने रब के कानून को। ये मालिक का बनाया कानून, इंसान का बनाया कानून नहीं है। मिसाल के तौर पर औरत, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो अपने शौहर से कहे कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, ये एक अलग बात है। अच्छा देखो, एक तरफ औरत को कमजोर बनाया है, दूसरी तरफ मर्द के अंदर औरत का खौफ रख दिया। अजीब अजीब बैलेंस के अल्लाह नहीं समझे बात। ताकत में आप बहुत ज्यादा हैं। एक लड़की ने, 12वीं की लड़की ने मुझसे शिकायत की कि सर हमको क्लास में बच्चे बहुत सताते हैं। तो मैंने कहा किसी मर्द में इतनी ताकत ही नहीं कि आपको सता सके। क्यों? हमने कहा पहली मर्तबा जब उसने आपसे बेतकल्लुफी बात की थी तो आपने उसको लिफ्ट कैसे दिया? फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा जब हमारी बहन से गैर महरम ने बात की और उसको महसूस हुआ तो उसको उसी वक्त कहना था कि बिहेव योरसेल्फ, आप अपने पायजामे के अंदर रहिए। अगर ये जुमला बोल कर देती, उसकी किसी मर्द के अंदर ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है कि वो किसी लड़की को छेड़ सके। पहले दिन क्या होता है कि वो आता है क्लास में कैसे होती शरारत, क्योंकि मैं तो 20 साल पढ़ाया हूं, क्लास में कैसे शरारत होती। वो कहता है कि आपके नोट तैयार हैं, तो ये खुश होकर के, हाँ कौन सा नोट चाहिए आपको? ये जो आपने खुश करके जो कहा, यहीं पे पहली गलती हुई है। पहली मर्तबा कहना था कि आप हमसे नोट क्यों मांग रहे हैं? आप अपने दोस्तों से मांगे, आप क्यों है मेरे पास नोट मांगने? आप एक मर्तबा कड़क के बोल देती, पूरी जिंदगी उसकी हिम्मत नहीं थी कि आपसे बात करता हूं। वो उसको नोट नहीं चाहिए था, वो तो आपको चेक कर रहा था कि आप किस पैमाने पर खड़ी हैं। ये अल्लाह ने औरत के अंदर एक तरफ मर्द को ताकत दे दी और दूसरी तरफ औरत का खौफ मर्द के अंदर बढ़ा दिया। 90% मर्द चाहते हैं दूसरी शादी करना। 90% मर्द में शादी कितने कर रहे हैं? 3 से 4%। बहुत ज्यादा अरबों को मिला लेंगे, भारत में लाएंगे तो 1% से ज्यादा नहीं है। पूरे शिमोगा में एक आदमी नहीं है कि जिसकी 4 बीवियां बैक वक्त आज मौजूद हैं। ये तो सिर्फ महज बदनाम करने की बात है। ये जो शादी मर्द नहीं कर रहा है, 90% दिल चाह रहा है, आपको शुक्र अदा करना चाहिए, मेरा खौफ इतना बड़ा अल्लाह ने बैठाया है, चाहते हुए भी शादी नहीं कर पा रहा है। ये कमाल नहीं है आपके रब का, ये आपके रब का कमाल है कि ताकत जिसको दिया, पैसा वो खर्चा करे, जिस्मानी लिहाज से वो ताकतवर है और खौफ तुम्हारा बैठा हुआ है। ये हमारे रब का कमाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये देखने में भोली भाली औरतें, अक्ल में भी इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे मर्दों को लट्टू की तरह नचाती है। साहब ये अजीबोगरीब बात है। ये हमारे रब की प्लानिंग है। अगर ये खौफ हमारे अंदर से निकल जाए तो दुनिया इम्बैलेंस हो जाएगी। भाई आप लोग 90% लोग अगर दूसरी शादी करना चाहेंगे, दुनिया में 51% ही तो औरतें मौजूद है, कहां पे शादी हो जाएंगी? औरतें कहां से आएंगी? आ ही नहीं सकती हैं। तो एक तरफ मर्दों के अंदर ये ख्वाहिश रख दिया और दूसरी तरफ औरतों का खौफ रख दिया, नतीजा निकला कि दुनिया बैलेंस से चल रही है। सब कुछ होते हुए भी आप कर नहीं सकते हैं। अच्छा, जो बात असल कहना चाहते थे, तो किसी औरत की ये फितरत नहीं है कि वो अपनी शौकन के लिए कह दे कि आपको इजाजत है कि आप शादी कर सकते हैं। अब देखिए कानून अल्लाह ने क्या बनाया। औरतें बहुत इससे कहती, कानून ये है कि मर्द को दूसरी शादी करने के लिए पहली सी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर पहली सी इजाजत की बात, तो हमारी तो फितरत है कि इजाजत नहीं देना, तो काहे को अल्लाह ऐसा कानून बनाएगा? जी समझे मेरी बात भैया, उसकी फितरत में है कि परमिशन नहीं देना। अब कानून अगर अल्लाह बना देता है कि पहली बीवी जब तक परमिशन नहीं दे तब तक आप शादी नहीं करें, तो कभी जिंदगी में दूसरी शादी होगी नहीं। अब अल्लाह ने अगर ये कानून बनाया है कि तुम्हारी इजाजत नहीं, तो आप देखें कि मेरी फितरत के तहत कानून बना है।